Hello students, this is Ejaz of Maths Academy and I am Ansar. So today we are going to study numerical questions of Science 1 chapter number 10 space missions. So I have already written the first question so as to save the time. This is our first question. If the mass of a planet is 8 times the mass of the earth and its radius is twice the radius of the earth, what will be the escape velocity for that planet? Let us now solve. See, we will follow a trick. हम लोग कैलकुलेशंस में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. सबसे पहले तो वी शुड राइट डाउन द जीवन डाटा, गिवन डेटा. तो गिवन क्या क्या है देख लेते हैं. गिवन है हमें, गिवन इज द मास ऑफ अ प्लैनेट. सो आई विल राइट MP, मास ऑफ अ प्लैनेट इज 8 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ. इट्स अ हेवी प्लैनेट. मास ऑफ द प्लैनेट इज 8 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ एंड इट्स रेडियस is the radius of the planet is twice the radius of the earth, 2 times the radius of the earth. This is given. What will be the escape velocity for that planet? So escape velocity for the planet will be, we already know the formula for escape velocity. Escape velocity VE, escape velocity of the planet. VE is escape velocity, P is planet, is equal to, the formula will be root 2 G is universal gravitational constant, and here we will write MP, mass of planet upon radius of planet. We have already studied the formula for it. ठीक है? I will give you, I will give it equation number 1, and then here I can write planet also, like okay. Then escape velocity VE is escape velocity of the earth. How much is the escape velocity from the surface of the earth? So we will write the formula. 2 universal gravitational constant will be the same, it is constant. This is mass of the earth. M capital E is mass of the earth divided by radius of the earth. Because we know formula for escape velocity is square root of 2gm upon r. This is our formula for escape velocity. Now I will give it equation number 2. So we can divide equation number 1 by equation number 2. Or we can do one thing. Escape velocity of the planet. We can do one thing. Instead of giving equation number 2 here, we can do one thing. See here students. This is the given data, mass of planet. So we can do one thing. Here we can write MP is equal to 8 times ME. So I will put the value here. I will write down, instead of giving equation number 1, escape velocity from the surface of the planet, and this value will be 2 times 2 into G into mass of planet will be 8 times the mass of earth. I am writing 8 times the mass of earth, and then radius of planet is 2 times the radius of the earth. 2 times the radius of the earth. Okay, so what do we get here? This 2 and this 2 get cancelled. Both 2 get cancelled. And हमारे पास क्या बचता है फिर? तो हमारे पास बचता है escape velocity from the surface of the planet is equal to square root of 8, we can write G into 8 into mass of earth upon radius of earth. और इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि, ओके, आपके लिए एक स्टेप और ज़्यादा लिख देता हूँ. We can write 4 into 2G mass of earth upon radius of earth. ठीक है, 4 into 2G mass of earth. सॉरी, mass of earth जो है मैं कैपिटल E से बता रहा हूँ, एंड रेडियस ऑफ अर्थ भी अपन कैपिटल E से बताते हैं. ऐसा कुछ रखा नहीं है, वेदर वी यूज कैपिटल E और स्मॉल इट इज द सेम थिंग. मास ऑफ अर्थ बोलना है हमको बस. सो दिस इज मास ऑफ अर्थ. नाउ दिस 4 विल कम आउट और ये 2 बन जाएगा और ब्रैकेट्स में बचेगा रूट 2 G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट करेंगे हम. सो वी विल राइट
escape velocity on the surface of the planet is equal to square root of, सिर्फ मैंने कहाँ सॉल्व किया है वो थोड़ा सीक्वेंस इधर उधर मैं आपको लिख कर दे देता हूँ। सबसे पहले हमने गिवन वाला पार्ट ये लिखा, फिर हमने यहाँ लिखा है, फिर उसके बाद थर्ड यहाँ पर किया है, और उसके बाद अब ये फोर्थ पार्ट इधर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस में नहीं लिखा, इधर उधर लिखा है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होने पाए। लेट अस पुट द वैल्यूज। 2 g का वैल्यू कितना होता है, तो 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ द अर्थ इज नियरली 6 into 10⁻24 kilograms डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होता है। हमको ऐसा यूनिट्स में लाना है, मीटर में 3 zeros बढ़ जाएगा, इज इक्वल टू। अब और यहाँ बाहर क्या था, वहां देयर वाज 2 आउटसाइड, है ना, क्योंकि ये 4 बाहर गया, √4 बाहर गया तो 2 बन गया। अब देखो दिस इज 2 into ये वैल्यू का कैलकुलेशन कितना होगा, ये वैल्यू का कैलकुलेशन कितना होगा। तो आपको मैंने बार बार बता चुका हूं कि वी हैव सॉल्व दिस वैल्यू अगेन एंड अगेन, एंड हमको ये वैल्यू हर बार मिलता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू हम याद रख लेंगे, ये हमारा ट्रिक है। ठीक है, इसके पहले भी एस्केप वेलोसिटी का आप अगर मेरा लेक्चर नंबर 2 देखेंगे तो उसमें एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने ये वैल्यूज पुट करके ये आंसर लाया, और मैंने कहा था आपको कि मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, मैं जल्दी आंसर लाता हूँ। एक्चुअली जल्दी आंसर लाता हूँ मतलब मुझे याद है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2s are 4 and 11 2s are 22, so this will become 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड, और यही आंसर हमारी टेक्स्ट बुक में भी दिया है। So this is the formula for the escape velocity of the planet। और आंसर इन वर्ड्स लिख लेना। मार्च 2008 एंड मार्च 2012 में उन्होंने हाफ मार्क दिया था आंसर इन वर्ड्स के लिए, तो लिख लेना द एस्केप वेलोसिटी ऑन द surface of the planet, the escape velocity from the surface of that planet will be 22.4 kilometers per second। I hope my students कि आपको ये समझ गया होगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियरली दिखाई दे। दिस इज योर सॉल्यूशन। बहुत इजी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, इजीली यू कैन डू इट। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कुछ नहीं समझे तो मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे पूछना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सी द सेकंड क्वेश्चन। हाउ मच टाइम अ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट एट हाइट 35,780 किलोमीटर्स अबव अर्थ सरफेस वुड टेक इफ द मास ऑफ द अर्थ वुड हैव बीन 4 times इट्स ओरिजिनल मास। ये जो वैल्यू है हाइट की 35,780 किलोमीटर्स, अगर आपने मेरा लेक्चर इससे पुराना वाला लेक्चर नंबर 2 इस चैप्टर का सुना होगा, देखा होगा, तो यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग, आपको याद होगा कि इतनी हाइट पर कौन सा सैटेलाइट रिवॉल्व होता है। तो इतनी हाइट पर जो सैटेलाइट रिवॉल्व होता है, दैट सैटेलाइट इज कॉल्ड द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। उस सैटेलाइट को हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। और वो सैटेलाइट को अर्थ का एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगता है, तो इट टेक्स अ टाइम ऑफ 24 आवर्स। वो सैटेलाइट को कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगता है अर्थ का एक चक्कर लगाने के लिए अंडर नॉर्मल कंडीशन। अर्थ का मास अगर m माना जाए तो हाइट इज 35,780 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, और अर्थ की रेडियस कितनी है 6400 किलोमीटर्स। ठीक है, और अगर अर्थ का मास m रहता है तो उसको टाइम कितना लगता है। अभी अर्थ का मास कितना है सच में, तो अर्थ का मास है 6 × 10⁻24 किलोग्राम्स नियरली, यानी m है मास, तो मास m है तो उसको टाइम 24 आवर्स लगता है। अगर अर्थ का मास डबल हो जाए, सॉरी 4 टाइम्स हो जाए, तो लेट अस सी गिवन डेटा क्या है। हाउ मच टाइम अ सैटेलाइट, तो टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितना हो जाएगा, मतलब T2 कितना हो जाएगा। अगर मास ऑफ द अर्थ m2 जो है वो 4 टाइम्स प्रेजेंट मास हो जाता है। ठीक है, यहां लिख दो क्या मैं अलग से आपको। T1 का मतलब क्या है, प्रेजेंट टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट around the earth, around the present earth of mass m, और वो टाइम पीरियड कितना है, अभी कितने टाइम में करता है 24 आवर्स में। ठीक है,
एंड T2 यानी क्या, न्यू टाइम पीरियड of revolution if mass of earth becomes 4 times present mass, और ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। एंड m यानी क्या है, प्रेजेंट मास ऑफ अर्थ, जो कि 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम हम लेते हैं। m1, m2 यानी क्या रहेगा, न्यू मास ऑफ अर्थ विच इज गिवन टू बी 4 टाइम्स द प्रेजेंट मास ऑफ द अर्थ। अगर ऐसा होता है तो ये गिवन डेटा है, चलो सॉल्व करते हैं। एंड स्मॉल r यानी क्या होता है, स्मॉल r यानी r प्लस एच, ये यहां से यहां तक स्मॉल r प्लस एच, और उसका वैल्यू कितना होगा, अर्थ की रेडियस कितनी है 6400 किलोमीटर, प्लस हाइट कितनी है सैटेलाइट की, तो 35,780 किलोमीटर्स, उसको ऐड कर लो, कितना बनेगा 35,780 प्लस 6400, it will be 0 8 7 4 11, 6 plus 6 12, and this will be 4 42188 42188 किलोमीटर होगा। ऐसा यूनिट्स में ला लेंगे तो इट विल बिकम 42188,000 मीटर्स। ये हो गया रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, और के सेंटर से सैटेलाइट तक रेडियस r प्लस एच, ठीक है। नाउ यू स्टूडेंट्स कैन डू वन थिंग, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन व्हाट इज रिटन ऑन द बोर्ड, ठीक है। मैं इसको फिर मिटा देता हूं एंड आई विल सॉल्व द क्वेश्चन। सी द सॉल्यूशन। अब ये सैटेलाइट हमको ये मानना है कि स्फेरिकल सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। सैटेलाइट लेट अस सपोज सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बचपन से, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, it will become distance upon speed. So time is equal to, time is time period। एक टाइम चक्कर लगाने के लिए सैटेलाइट को कितना टाइम लगेगा, T2 कितना लगेगा, तो टाइम पीरियड का पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन। टाइम पीरियड की जगह मैं T2 लिख देता, न्यू टाइम पीरियड, उसके लिए डिस्टेंस कितना रहेगा r प्लस एच। डू यू नो, एक चक्कर गोल घूमने में, सॉरी नॉट r प्लस एच, एक चक्कर गोल घूमने में, एक पूरा गोल चक्कर लगाने में सैटेलाइट कितना डिस्टेंस कवर करता है, सरकमफेरेंस के बराबर। और सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r प्लस एच। या मैं चाहे तो स्मॉल r भी लिख सकता, आई कैन राइट स्मॉल r ऑल्सो, लेकिन ठीक है जाने दो, r प्लस एच ही रहने दो। सो दिस इज इट, 2 pi r, circumference of a circle is 2 pi r, and speed कौन सी रहेगी, तो I am writing vc का मतलब क्या है, vc का मतलब है क्रिटिकल वेलोसिटी। जितनी वेलोसिटी से सैटेलाइट किसी प्लेनेट के गोल घूमता है उसको क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला हम पुरानी क्लास में डिराइव कर चुके हैं, इट इज gm अपॉन r प्लस एच। अगर आपको याद होगा क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला लेक्चर नंबर 3 में मैंने डिराइव किया, लेक्चर नंबर 3 में इसी चैप्टर के। Critical velocity is root gm upon r plus h. So here we will put the value, T2 is equal to 2 pi ब्रैकेट्स में r plus h, और यहाँ लिखेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ gm upon r plus h। r plus h का मतलब है अर्थ की रेडियस प्लस ये हाइट ऑफ द सैटेलाइट। vc का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहते हैं, और क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब होता है द वेलोसिटी विथ व्हिच द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। जितनी वेलोसिटी से सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है उसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे, तो इट विल बिकम T2 इज इक्वल टू, ध्यान से समझना। अब हम इसको एक काम कर लेंगे, T2 ये हो गया, इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1, नहीं ये टाइम हो गया ना,
सॉरी यहाँ जो हमने m रखा है मास, यहाँ अर्थ का मास m नहीं रखेंगे हम, यहाँ कौन सा मास रखेंगे हम, T2 है, न्यू टाइम पीरियड है, तो मास ऑफ अर्थ भी कौन सा मास रखेंगे हम, 4 टाइम्स द मास ऑफ ओरिजिनल अर्थ m1, ठीक है, m1 रख दिए वहां पर, 4 टाइम्स m1, कंफ्यूज मत होना। टाइम पीरियड कौन सा रखा हमने, न्यू टाइम पीरियड। अभी अर्थ कितना चक्कर, कितने देर में चक्कर करती है, अर्थ के अराउंड सैटेलाइट कितनी देर में चक्कर करता है, 24 आवर्स में, और अर्थ का मास प्रेजेंट कितना है, m1। लेकिन अगर अर्थ का मास m2 हो जाता है, यहाँ चाहे तो मैं m2 लिख दूं क्या, ये देखो m2, अर्थ का मास m2 हो जाता है तो टाइम पीरियड भी t2 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यूज रख देते हैं, तो हियर वी कैन राइट t2 इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस h अपॉन, ब्रैकेट्स में लिखेंगे g इंटू 4 टाइम्स द मास ऑफ, प्रेजेंट मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r प्लस h, ये हमने रख दिया ऐसा, ठीक है। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और हम लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन प्रूव कि T1 प्रेजेंट टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ विल बी 2 पाई r प्लस h अपॉन रूट g इंटू m1 अपॉन r प्लस h, ये हम प्रूव कर सकते हैं यही मेथड से। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना रहेगा, सेम रहेगा, ऑर्बिट तो सेम रहेगा, vc क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू रहेंगी, सिर्फ क्रिटिकल वेलोसिटी में यहाँ मास m2 है, और अगर अर्थ का मास कम रहता है तो वहां मास m1 रहेगा, बाकी सब सेम है। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी कैन डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम आपस में डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, एक काम और कर लेते हैं, यहां पर इसको ऐसा लिख लेते हैं, इज इक्वल टू T2 का देखो 2 पाई r प्लस h अपॉन, डिनोमिनेटर में देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ये 4 को बाहर ला रहा हूं, 2 लिख रहा हूं, और यहां ब्रैकेट्स में लिख रहा हूं मैं g m1 अपॉन r प्लस h, ऐसा लिख दिया मैंने, और ये हो गया इक्वेशन 1। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो देखो क्या मिलता है हमको। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द थिंग्स, मैं फिर मिटाकर उसके आगे का सॉल्व करता हूँ। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में रिमेंबर स्टूडेंट्स, ऑर्बिट नहीं चेंज हो रहा, रेडियस नहीं चेंज हो रही, अर्थ का हाइट चेंज नहीं हो रहा है, सैटेलाइट का अर्थ के ऊपर से हाइट चेंज नहीं हो रहा, रेडियस चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। सिर्फ एक ही चीज़ है जो चेंज हो रही है, वो है मास ऑफ द प्लैनेट। पहले अभी मास m1 है, और इमेजिन कर लेते हैं कि मास 4 टाइम्स हो जाता है तो टाइम पीरियड कितना चेंज होगा। हाँ देखो उसके आगे का कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो इट विल बी T2 डिवाइडेड बाय T1, LHS से LHS को डिवाइड करो, RHS से RHS, इधर क्या हो जाएगा 2 पाई रूट r प्लस h अपॉन 2 इंटू रूट जी m1 अपॉन r प्लस h, और इधर हो जाएगा 2 पाई r प्लस h अपॉन रूट जी एम अपॉन r प्लस h। तो इसमें से देखो 2 पाई r प्लस h 2 पाई r प्लस h कैंसिल हो सकता है, कोई स्टूडेंट बोलेंगे सर ये कैसे कैंसिल हो रहा, तो ठीक है अगली स्टेप में मैं मल्टीप्लिकेशन में लाके दिखा देता हूँ, इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस h अपॉन 2 इंटू रूट जी एम अपॉन r प्लस h मल्टीप्लाइड बाय, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा ये वाला रूट जी एम अपॉन r प्लस h, एंड डिनोमिनेटर में ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, आपको मालूम है रेसिप्रोकल हो जाता है इसका, तो दिस विल बिकम 2 पाई r प्लस h। तो ये देखो ये कैंसिल, ये ऊपर का कैंसिल, ये कैंसिल, बचा क्या 1/2 ओनली। तो हियर वी विल राइट T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1/2। तो T2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 इंटू T1, और T1 का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ होता है,
उसका वैल्यू कितना होता है? तो उसका टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स होता है। उसका टाइम कितना होता है? 24 आवर्स। T1 का वैल्यू कितना होता है? 24 आवर्स। लेकिन हो सकता है कि किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ जाए कि 24 आवर्स कहां से हो गया, है ना? अगर ये देखो, मैं इसको दो तरीके से बताता हूँ। ये 24 आवर्स है और ये हो गया T2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 आवर्स हो गया, ये आंसर आ गया। लेकिन आप कहोगे कि सर क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं है, पहली बात क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं है कि 24 आवर्स होता है करके, तो फिर क्या करेंगे? तो ऐसे सिचुएशन में हम एक काम करते हैं, हम ये मेथड को नहीं करेंगे, हम इसमें दूसरा लॉजिक लगाएंगे। कौन सा लॉजिक लगाएंगे? हम इसी में वैल्यू पुट कर देंगे और भी छोटी मेथड। अभी जो मैंने सॉल्व किया वो मेथड नंबर 1 थी। अब ये मेथड नंबर 2 देखो यहां पर। अब क्या करेंगे? हम इसको लिखेंगे 2 पाई r प्लस एच। ध्यान से समझना, ये 1/2 को साइड में लिख रहा हूं, 1/2 यहां लिखेंगे 2 पाई r प्लस एच अपॉन रूट gm अपॉन r प्लस एच। ध्यान से स्टूडेंट, ध्यान से समझो, ये क्या है? ये m1, ये 2 पाई r प्लस एच क्या है? डिस्टेंस। और ये क्या है? वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी यानी क्या होता है? टाइम होता है। और यहाँ m1 है, मतलब टाइम 1 है। और टाइम 1 कितना होता है? तो प्रेजेंट टाइम कितना होता है? 24 आवर्स होता है एक चक्कर लगाने के लिए। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे? पहले वैल्यूज तो पुट कर देंगे उनके सेटिस्फैक्शन के लिए। 64000 5 जीरो, फिर ये प्लस 35780,123 मीटर में रख दिए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ g का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम्स अपॉन r प्लस h है, तो फिर से वही 6 4 1 2 3 4 5 प्लस 35,780 1 2 3 जीरो मीटर में, ऐसा यूनिट्स में। और इसको हम लिखेंगे ऐसा इंटू 24 आवर्स। आप कहोगे इतना फास्ट में आंसर कैसे सर? तो रिमेंबर, बोर्ड एग्जाम में जो मार्क्स दिए जाते हैं वो स्टेप्स पर, कैलकुलेशंस को नहीं देखा जाता है, वहां देखते हैं आपने आंसर कैसे लाया। तो हमको मालूम है अभी प्रेजेंट टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, सॉरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का अर्थ के अराउंड, वो 24 आवर्स है अभी प्रेजेंट में। अर्थ का एक रोटेशन 24 आवर्स में होता है और इतनी हाइट वाले सैटेलाइट का भी एक रेवोल्यूशन कितने में होता है? 24 आवर्स में होता है। तो हमने ये फॉर्मूला लाए और वो 4 टाइम्स मास को 4 को बाहर ला लिए, तो अब ये फॉर्मूला किसका बन गया? ये फॉर्मूला किसका है? दिस फॉर्मूला इज फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट प्रेजेंट मास m1 वाले अर्थ के लिए। तो इसको सॉल्व कर लिए तो वी गेट T2 इज इक्वल टू नियरली 12 आवर्स। ये हमारा आंसर हो गया। तो अभी जो थोड़ी देर पहले जो मैंने मेथड किया था उसको मत करना, बस ये मेथड फॉलो करना। क्या करना है? T2 का फॉर्मूला लेके आना है। T2 इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस एच अपॉन g, 4 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ, 4 टाइम्स m1 अपॉन r प्लस एच। इसमें से ये 4 को बाहर निकालो तो √2 बन जाता है। और ये जो वैल्यू बच रही है ये क्या है मालूम है आपको? ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए फॉर्मूला है, वो तो है ना। अभी अर्थ का मास अगर m1 है और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यहाँ घूम रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है उसको? 24 आवर्स। और फॉर्मूला क्या होगा फिर उसके लिए? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। ये मत लिखना, ये एडिशनल समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस कितना है सैटेलाइट का? 2 पाई r प्लस एच है। स्पीड कितनी है? तो क्रिटिकल वेलोसिटी है। और क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी रहती है? तो उसका फॉर्मूला है √gm अपॉन r प्लस एच। और ये वैल्यूज डाल दिए तो आंसर कितना आना चाहिए? अभी कितना टाइम पीरियड लगता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को एक चक्कर लगाने के लिए? 24 आवर्स। तो इसकी वैल्यूज भी अगर हमने डाल दी है 2 इंटू 3.14 इंटू r प्लस एच, r की वैल्यू 6400012 और प्लस 35,780 1 2 3 780, उसके बाद एक और जीरो यहाँ भी होगा ना, 780 3 जीरोस, हाँ बराबर है। और अपॉन में अगर हम यहाँ लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ g 6.67 इंटू 10⁻⁻11
into mass of earth 6 into 10 to power 24 kilograms upon radius of earth। फिर से वही, रिमेंबर ये रेडियस जो ना अर्थ के सेंटर से गिनना पड़ता है, r प्लस एक्स, 1 2 3 4 5 प्लस 35 780 1 2 3 ये वाला। अब इसको सॉल्व करने पर आने वाला कितना आंसर है, और सैटेलाइट को, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को अभी कितना टाइम लगता है एक चक्कर लगाने के लिए, तो 24 आवर्स लगते हैं। तो हम सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कौन लाएगा ये रूट और पावर्स और सब क्या करेंगे, तो हम याद रखेंगे, हमको मालूम है ये हाइट दे के उन्होंने हिंट दे दिया हमको कि ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है और ये 24 आवर्स में एक चक्कर अर्थ का करता है अभी। और अगर अर्थ का मास डबल हो जाता है तो कितना टाइम लेगा, तो ये देखो अर्थ का मास डबल हो गया, तो सॉरी अर्थ का मास 4 टाइम्स हो गया, तो हमने 4m1 लिख दिए, 4m1 लिखे तो रूट के बाहर 2 आ गया और वो 2 हो गया, तो ये आंसर लाके 12 आवर्स हो जाता है। आई होप आप इसके पीछे का लॉजिक समझ गए होंगे, और अगर लॉजिक नहीं समझा तो फिर से मुझसे कांटेक्ट करो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ द हाइट ऑफ अ सैटेलाइट कंप्लीटिंग 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज in t seconds is h1 meters, then what would be the height of a satellite taking 2√2 times t seconds for 1 revolution। मतलब हमारे पास 2 सैटेलाइट्स है, एक सैटेलाइट ऐसा है जो अर्थ का चक्कर जो है, सैटेलाइट ये सपोज दिस इज द अर्थ, ये अर्थ है, अर्थ से उस सैटेलाइट की हाइट कितनी है h1, और वो अर्थ का एक चक्कर लगाता है कितने सेकंड्स में, तो उसको लगते हैं t सेकंड्स, टाइम t सेकंड में एक चक्कर लगाता है। और एक दूसरा हमको इमेजिन करना है, एक सैटेलाइट ऐसा है जिसको ज्यादा टाइम लगता है, उसको टाइम लगता है 2√2 टाइम्स t, 2√2 यानी √8 हो जाता है, √8 टाइम्स t लगता है उसको, तो उसकी हाइट कितनी होगी, तो नेचुरल बात है उसकी हाइट ज्यादा रहेगी, क्योंकि केपलर ने क्या कहा, square of the time period is directly proportional to cube root of cube of orbital radius। जो सैटेलाइट जितने दूर से अर्थ का चक्कर लगाता है टाइम भी उसको उतना ज्यादा लगता है एक चक्कर करने के लिए। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, पहले लिख लेते हैं ये ब्लैक वाले के लिए ऑर्बिट 1 एंड ऑर्बिट 2 ऐसा नाम दे देते हैं, ऑर्बिट 1 एंड इसको नाम दे देते हैं ऑर्बिट 2। फॉर ऑर्बिट 1 टाइम पीरियड कितना लग रहा है, टाइम पीरियड लग रहा है t1 है ना, t1 दे देते क्या, t नाम दिए, एंड हाइट कितनी है, हाइट इज h1। फॉर ऑर्बिट 2 टाइम पीरियड कितना लग रहा है सैटेलाइट को एक चक्कर करने के लिए, तो टाइम पीरियड लग रहा है 2√2 इंटू टी, एंड सेकेंड सैटेलाइट की हाइट कितने दूर है अर्थ के सरफेस से, h2। अब सॉल्व करते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, फिर से वही फॉर्मूला याद करो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो वी कैन राइट टाइम पीरियड, एक्चुअली टाइम यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, किसके लिए लिखते हैं, फॉर ऑर्बिट 1, पहले ऑर्बिट 1 के लिए लिख लेते हैं, टाइम पीरियड फॉर ऑर्बिट 1, या एक काम करते हैं डायरेक्ट t1 लिख दे, t, अच्छा, टाइम पीरियड फॉर ऑर्बिट 1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस कितना चलेगा, 2 पाई r प्लस h1 अपॉन vc। अब बोलो vc क्या है, vc इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी से कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है, गोल घूमता है, उस वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है क्रिटिकल वेलोसिटी का, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 पाई r प्लस h1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस h1। थोड़ी देर पहले हम क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला इसके पहले न्यूमेरिकल में यूज कर चुके हैं, और इसका टाइम पीरियड कितना लग रहा है, t, ऑर्बिट नंबर 1 के लिए टाइम पीरियड कितना लग रहा है, t लग रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड। अब इसको हम वैसे रहने देते हैं, चाहे तो इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन एक काम करते हैं इसको वैसे रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली
हम ऐसे लिखेंगे सिमिलरली। जगह है कि इसी में कहीं और लिखने के लिए हमारे पास? यस, यहाँ लिखता हूँ। कलर चेंज कर देता हूँ पेन का ताकि आपको समझ में आएगा सेकेंड स्टेप हम कहाँ से चालू कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप सिमिलरली टाइम पीरियड फॉर ऑर्बिट नंबर 2 क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड फॉर ऑर्बिट 2, सेकेंड ऑर्बिट के लिए टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? तो इट विल बी 2 पाई r प्लस h2 अपॉन vc। उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी अलग रहेंगी। क्रिटिकल वेलोसिटी यानी गोल घूमने की वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, क्रिटिकल वेलोसिटी का, तो इट विल बिकम 2 पाई r प्लस h2 अपॉन रूट gm अपॉन r प्लस h2। ठीक है, यहाँ की क्रिटिकल वेलोसिटी में रूट r प्लस h1 है नीचे और यहाँ r प्लस h2 है। अंडरस्टूड? अब इसको दे देते हैं आप इक्वेशन नंबर, और ये सेकंड का टाइम पीरियड कितना दिया है? तो इट इज गिवन टू बी 2 रूट 2 इंटू टी। सेकंड ऑर्बिट का टाइम पीरियड कितना दिया है? 2 रूट 2 इंटू टी इंटू टी। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करने वाले हैं, बट बिफोर दैट मैं आपसे कहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर दो वीडियो, एंड देन फिर उसको मैं ये मिटाता हूँ एंड आगे सॉल्व करता हूँ। अब देखो उसके आगे का कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, 2 को 1 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2 का LHS क्या है? 2 रूट 2 इंटू टी, और इधर में क्या है? टी। उधर साइड में क्या आता है? 2 पाई r प्लस h2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस h2, और इधर आता है 2 पाई r प्लस h1 अपॉन रूट gm अपॉन r प्लस h1। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लेंगे हम, रेसिप्रोकल वाले फॉर्म में ला लेंगे जैसा आप मैथ्स में करते हो। So is equal to 2 pi root r plus h2 upon root gm upon r plus h2 into, यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा रूट gm अपॉन r प्लस h1 अपॉन 2 पाई r प्लस h1, है ना? ये 2 पाई r प्लस h1 डिनोमिनेटर में गया, ये ऊपर आ गया, तो ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। और अब इसको देखो मैं टुकड़े करके कैसे लिखता हूं। आई विल राइट r प्लस h2, ये हो गया, इंटू यहां देखो मैं क्या लिख रहा, रूट gm अपॉन रूट r प्लस h1 चलता है। ये काम कर लेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे। इधर ये देखो ये कैंसिल हो गया, और यहां क्या बचा? 2 रूट 2 अपॉन 1, 2 रूट 2 अपॉन 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा? अगर आप इसका सॉल्यूशन नमनी डाइजेस्ट में देखोगे बहुत खतरनाक मिलेगा आपको। मैं इजी मेथड से कर रहा हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू, ये क्या होगा? r प्लस h2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू gm खुला हो जाएगा, r प्लस h1 खुला हो जाएगा, अपॉन ये gm ओपन हो जाएगा, उसके नीचे r प्लस h2 रूट के बाहर रहेगा, इंटू ये r प्लस h1 का जो है ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये gm और ये gm कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहां देखो क्या होता है, इसके आगे की कहानी। 4 2 जा 8 इज इक्वल टू, इधर का दिख रहा है आपको,
4 2 जा 8, वहां क्या बच रहा है, r प्लस एच टू का स्क्वायर अपॉन r प्लस एच वन, ठीक है, अपॉन नीचे क्या बच रहा है, r प्लस एच वन का स्क्वायर अपॉन r प्लस एच टू, इसको भी अपनी भाषा में ला लो, r प्लस एच टू का स्क्वायर, ठीक है, ये देखो r प्लस एच टू होल स्क्वायर अपॉन r प्लस एच वन इंटू रेसिप्रोकल r प्लस एच टू अपॉन, इसको लिखेंगे r प्लस एच वन का होल स्क्वायर। जम गया? अब ध्यान से समझना, r प्लस एच टू का स्क्वायर इंटू r प्लस एच टू यानी क्या होगा, r प्लस एच टू का क्यूब, r प्लस एच वन इंटू r प्लस एच वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, r प्लस एच वन का क्यूब। और ये 8 को मैं ऐसा लिख सकता 2 क्यूब, मैथ्स में है ऐसा। फिर लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा r प्लस एच टू और ये हो जाएगा r प्लस एच वन, ठीक है, r प्लस एच वन। पॉज द वीडियो पॉज कर लो, नोट डाउन कर लो, मैं इधर का मिटाता हूं फिर आगे का सॉल्व करता हूं, ठीक है। हाँ देखो स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ नीचे कुछ नहीं है, मतलब सबका मालिक एक, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू आर प्लस एच वन इज इक्वल टू आर प्लस एच टू, ऐसा हो जाएगा। अब दिस इज 2 इंटू आर प्लस एच वन, तो ये 2 इंटू आर यानी 2r हो जाएगा प्लस 2h1 इज इक्वल टू आर प्लस h2, ये r इधर आ जाएगा तो 2r प्लस 2h1 माइनस 1r इज इक्वल टू h2, 2r में से एक r गया, एक r बचेगा प्लस 2h1 इज इक्वल टू h2। तो h2 का फॉर्मूला क्या रहा, कितनी हाइट पर सैटेलाइट घूमेगा, सेकंड वाला ऑर्बिट 2 वाला, तो h2 विल बी r प्लस 2 टाइम्स h1, इतनी हाइट पर वो सैटेलाइट घूमेगा। और यही आंसर हमारी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। और फिर आंसर इन वर्ड्स लिख लेना फिर आप, द हाइट ऑफ द सेकेंड सैटेलाइट हैविंग टाइम पीरियड 2√2 टाइम्स t विल बी r प्लस 2h1। आई होप माई डियर स्टूडेंट्स कि आपको हर चीज़ समझ में आ गई होंगी। कहीं कोई डाउट डिफिकल्टी होती है तो डू कॉन्टैक्ट मी, मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ हमेशा। बस अच्छी पढ़ाई करना है और अच्छा रिजल्ट लाना। इस तरह स्पेस मिशंस चैप्टर हमारा फिनिश हुआ, थियरी और न्यूमेरिकल्स पूरे हो गए। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। दिस इज एजाज सर्स मैथ्स अकेडमी एंड आई एम अंसार सर।